Hey everyone, it's Ankit Madan. Welcome to another episode of Vital Stories. Well, NEET PG preparation is the talk of the town. In order to address that, we have with us rank holder of NEET PG 2024. So please help me in welcoming Dr. Malika from BPS Kanpur. Hi everyone, I'm Dr. Malika. I have done my MBBS from Huddersfield Singh Government Medical College, Government. It is in Sonipat, Haryana, and I've secured an All India rank of 643 in May I9 and an All India rank of 300 in NEET PG 24 in my first attempt. And currently, I'm pursuing MD Radio Diagnosis from Government Medical College now. Thanks Okay, for it's a pleasure to have you, Dr. Malika. So, Dr. Malika, diving into the conversation, उससे जाने से पहले आप अपनी MBBS जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? Okay, so my MBBS journey is mostly full of studies and I think first year just went into to figure out क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, how is medical college, and from second year onwards I used to read all the main textbooks, all the standard textbooks, and you name any source, any resource, any book, I most probably would have studied it. And in my third year, final year in internship, I prepared with an aim of clearing NEET PG. I started my preparation in my third year. Okay, so how does it feel like to secure All India rank 300 in the very first attempt? Honestly, I feel very blessed and I think God has been very kind to me. I really feel that all my hard work has beautifully paid me off and I had the perfect ending to my preparation journey. So, were you expecting that you will be getting such rank, or you were expecting even more higher? I think I was expecting a good rank in May I9 and I don't want to sound like a narcissist that 643 wasn't a great rank, but I was expecting a better rank in May I9. And since it didn't happen, so I was pretty disheartened for like 10-15 days. So when I gave my NEET PG exam, I was just making TED talks to myself that don't expect too much, don't expect anything, just welcome everything with open arms, whatever you get. And I was very, very happy when the result came out. आज की हमारी जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है दैट इज फॉर द नीट पीजी राइट एंड बहुत ज्यादा रूमर्स भी चल रहे हैं कि नीट पीजी पोस्टपोन होने के भी चांसेस हैं राइट सो लेट्स से अभी आज से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 3 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए तो लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए व्हाट वुड बी द आइडियल प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स Okay, first things first, if you are really preparing with a serious mindset, so in rumors पे ध्यान मत दो एकदम. What if they are not true? It will just end up wasting your time. Okay, and second of all, I was in a similar situation. My internship had ended it in I think April, and we had our exam to be originally held in June. So that corresponds to a similar timeline. Two things that will keep you going in this time are discipline and consistency. So just first things first, start making a timetable. Make your timetable in such a way that you have to finish at least one round of revision before May and time. Okay, and also try to make a timetable you have to study for the next day and night before, so that when you wake up you're just oriented कि आज मुझे क्या पढ़ना है. I've already made my timetable and now I have to just take action on it. Okay? Second thing is to divide your time equally. For example, you study for 8 hours. Now you have to divide your time equally to both theory and MCQs. You're just 3 months from exam. You cannot be like, I'll just finish theory or I'll just practice MCQs. You have to keep both things going hand in hand. And just practice maybe for 3-4 hours, you can practice MCQs. For 4-5 hours, you can practice your theory. In both MCQs and theory, you have to stratify and you have to pick the most important things first. For example, in MCQs, start with solving previous year questions and previous year topics. Also, make sure that you practice at least 200 to 300 questions a day in the form of custom modules. Which tabs to include in custom modules? Recent NEET, I9. Also, please practice MCQs of FMGs. Include tags of clinicals and images. And with subjects to add to custom modules, the subject that you're currently studying and the last subject that you studied. Same stratification applies to theory as well. Just figure out that which subject carries more weightage and which subject carries comparatively less weightage. You have to divide your time also according to it. If you have to study psychiatry, you don't have to go to main notes or you don't have to go to textbooks to prepare for psychiatry. You have to be sure that it just carries 5 questions, out of which I have to get 4 or 5 questions right, that I can easily get right by studying from a concise source or practicing previous year questions or just reading upon previous year topics. Okay. But on the other hand, if a subject has a very high weightage, to specifically mention patho, pharma, surgery, and obstetry, you have to master the concepts of these subjects. You have to go to your main notes, you have to go to your main videos, you have to study from a concise source as well.
कि लास्ट के 10 दिन में मुझे इन जो सब्जेक्ट से पढ़ना है, मेरे पास उसका कुछ कंसाइज नोट्स बना हुआ है, ठीक है. एंड यू हैव टू मास्टर दीज सब्जेक्ट्स, यू हैव टू गेट देयर concepts right, and these are the subjects that you cannot ignore. If these are your weak subjects, you have to really work on them. ओके, सो डॉक्टर मलिका, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और सेग्रीगेट में करूं, देखो अभी इस टाइम पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, राइट. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 2019 बैच के स्टूडेंट्स, राइट. एक तो वो जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, राइट, और दूसरी कैटेगरी वो जिन्होंने मतलब इंटर्नशिप में अपना करा है, दे डिडंट गेट दैट मच टाइम एंड दे आर जस्ट फोकसिंग कि हाँ जब इंटर्नशिप खत्म होगी उसके बाद करेंगे. एंड अभी देखो ये भी रूमर्स हैं कि हो सकता है नीट पीजी पोस्टपोन हो, बिकॉज द सेम सिचुएशन हैपेंड विद यू गाइस आल्सो लास्ट ईयर कि भाई बहुत क्योस मचा था, पोस्टपोनमेंट आई थी. सो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी पकड़ते हैं हम 2019 बैच के स्टूडेंट्स जो सिंसियरली फर्स्ट टाइम से मतलब शुरू से अपनी कवर अप कर रहा है एंड ही और शी इज टारगेटिंग टू क्लियर इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. उसके पास देखा जाए मोटा मोटा 3 महीने है. 3 महीने के साथ अगर मान लो एक सेफर साइड के लिए अगर पोस्टपोनमेंट आता भी है, राइट, उसके लिए आपके हिसाब से कब पहली रिवीजन हो जानी चाहिए, कब दूसरी और कब तीसरी, सो दैट अगर वो टारगेट करे, क्योंकि आई थिंक जो 2019 बैच का स्टूडेंट है और वो अच्छे से अगर प्रिपेयर करे तो ही और शी वुड बी लैंडिंग समवेट अराउंड 120 टू 130 35 के आसपास. और उसके एस्पिरेशंस होंगे कहीं ना कहीं 160 तक पहुंचने के. उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? ओके, सो इफ यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी, तो ऐसे मत सोचो कि पोस्टपोन हो जाएगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा. जस्ट थिंक ऑफ इट एज व्हाई डोंट यू बी दैट कंपटीशन. हम क्यों नहीं इतना अच्छा कर लेते कि वी हैव अ सिक्योर्ड रैंक और वी हैव अ सिक्योर्ड सीट. सेकंड ऑफ ऑल, नॉट टू get disheartened by any postponements. I have been in a similar situations. Our exam got postponed and preponed a lot of times, and it obviously created a lot of anxiousness and nervousness in my head every time it happened. Having said that, you have to also realize it will be a blessing in disguise to you guys, because no matter at what level of preparation you are obviously have a scope of improvement at every stage. Okay, so if you are in that situation that you're already scoring well and you have made your mind to clear this exam in this attempt only, then you just have to work on your weaknesses and you have to work on your strengths as well. कि मेरे जो strong subjects है वो strong रह रहे हैं, weak subjects में और ज़्यादा stronger हो रहा. अब वो कैसे करना है? The lacking in your preparation, you have to figure out yourself that what am I lacking at? How did I jump from maybe 90 to 120? मैंने क्या किया? मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे और मैंने एक साइकिल ऑफ रिविजन करी तो मेरा उतना जंप आया. Similarly, figure out कि अब now if you are at 120, the 80 questions that you are getting wrong, why are you getting them wrong? Do you don't know the theory well? Do you don't know the concepts well? आपकी MCQs की प्रैक्टिस नहीं हुई है, या फिर अभी तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टॉपिक्स पे होल्ड नहीं बनी है. तो वन मिस्टेक दैट आई यूजुअली काउंटर इज, लोग बस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके सोचते हैं कि हो गया अभी मैंने कर लिया, बट नहीं, तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज देम 4 or 5 टाइम्स. ठीक है. ऑल्सो especially while solving all the MCQs, but especially while solving previous year questions, just try to find out कि बाकी 3 आंसर क्यों गलत है. क्या इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाता कि ये आंसर करेक्ट बैठ जाता. तो उसको फिगर आउट करो, और जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक को फिगर आउट करो. अगर पूछा है कि कितने लेवल के नीचे हाइपोग्लाइसीमिया होगा बच्चे में, तो रीड दैट टॉपिक कि हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड लेवल इतना, प्लाज्मा लेवल इतना, और अगर हो जाता है तो कैसे ट्रीट करेंगे, कितने शुगर से नीचे कितना इंसुलिन देंगे. Just try to study that topic in such a way that every potential question out of it is covered. Okay, so do this. Practice a lot of questions. Practice at least 4 or 5 rounds of MCQs. And if you are at 130 corrects, I think give a lot of tests, a lot of GTs that are available on every platform. जो free का है तो हर किसी platform पे दे दो कि आपके पास सब्सक्रिप्शन है. डोंट लीव एनी जीटी एंड डोंट लीव अ जीटी अनरिव्यूड. दैट इज ऑफ नो यूज. तो ग्रांड टेस्ट दो, उसमें से असेस करो व्हाट एम आई लैकिंग एट. ग्रांड टेस्ट डोंट लाई, वी से डिडंट लाई टू मी. ठीक है. दैट आर देयर टू असेस योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इफ यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. सो यूज इट एज अ टूल टू इंप्रूव. ओके, डॉक्टर मलिका, आप अपनी जीटी की जर्नी को एक्सप्लेन कर पाओगे? क्योंकि आई एम श्योर कि आप जैसे अभी पॉडकास्ट से पहले भी हमारी बात हो रही थी, आपके 165 स्टेगनेंट थे एक टाइम था, और जब आपने स्टार्ट किया होगा आई गेस देयर वुड बी अ सैचुरेशन पॉइंट की जहाँ पे 80 90 या 100 की जर्नी रही होगी. तो आपकी वो 100 से 165 की जर्नी कैसी रही? वर देयर एनी सॉर्ट ऑफ सैचुरेशंस इन बिटवीन? Yeah. Obviously, I started giving my GTs in my final year itself. So I had encountered almost 2 stagnations.
I think the jump from 80 to 120 was quite easy क्योंकि I don't again want to sound narcissist, but it was easy because एक बार that jump will come if you're done with your one cycle of revision, and second of all if you have just finished your previous year questions and topic skills. So 80 to 120 jump is that only. अच्छे से recall होना चाहिए, आपकी एक revision होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी MCQ की practice होनी चाहिए और आपको previous year questions आने चाहिए. The jump from 120 to 145, again, my second stagnation was at 145 corrects. Okay, that was because I had done questions, I knew stuff, but I wasn't able to recall them well. So I used to study by the technique of actively recalling things. That I used to just make questions out of everything that I studied. And पहले मैं वो पे blank questions वाला पेज खोलती थी, उसमें से देखती थी कि मुझे क्या याद आ रहा है, क्या नहीं याद आ रहा. तो मेरा रिकॉलेबिलिटी उससे बढ़ गया था. और 120 to 145 की जो जर्नी थी, इसमें मैंने 2-3 राउंड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे कि मैंने कोई डिस्कशन वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, या मैंने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करके पढ़ लिया, या जो एक्सप्लेनेशन नीचे क्वेश्चंस के दिए होते हैं वो अच्छे से पढ़ लिया, और टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए कि अच्छा ये क्वेश्चन में भी एसटीडीज से आया है, तो फिर मैं एसटीडीज के आगे एक स्टार बना देती थी अपने नोट्स में कि ये टॉपिक, ये पेज मुझे अच्छे से मास्टर करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में भी सेम नहीं आएगा, बट सेम टॉपिक से बहुत रिपीट होते थे. जीटीज में भी ऐसा होता था कि उनको पता है जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री, तो एक बार वो गाउशियस पूछेंगे, दूसरी बार वो मे बी फार्वर्ड्स पूछ लेंगे. तो ऐसा मैंने वो करा था. तो 120 to 145 की जंप वहां से आई थी. और 145 to 165 केम अलोंग द सेम की और ज्यादा रिविजन्स हो गई थी, और ज्यादा प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हो गया था, नोट्स पे ग्रिप बहुत अच्छी हो गई थी, रिकॉलेबिलिटी बहुत बेटर हो गई थी. बट द फाइनल जंप फ्रॉम 165 to 175 दैट केम व्हेन आई इंक्रीज्ड एंड डबल्ड माय एमसीक्यू सॉल्विंग टाइम. तो जब मेरा एग्जाम पोस्टपोन हुआ था फ्रॉम जून 23 टू अगस्त 11, तब मैंने उससे पहले एक जीटी दिया था, उसमें मेरी 1100 रैंक आई थी. Okay. ठीक है. और उसके बाद फिर जब पोस्टपोन हो गया था, आई वाजंट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और आई वाज आल्सो सैचुरेटेड इन माय हेड कि अब मैं क्या पढूं, थ्योरी तो याद है, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैंने इतना सारा पढ़ाई करी है, इतने सारे टेस्ट दिए हैं, मैं जीटी भी एनालाइज कर रही हूँ. आई वाजंट जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज रॉन्ग विद मी. ठीक है. फर्स्ट तो फिर मैंने यही करा था. जब मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट कि जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, जीटीज या कोई भी टेस्ट जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्री है वो दे दिया. जो प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन मेरे पास थे, उसके जो पुराने टेस्ट थे जो मैंने नहीं दिए थे वो दे दिया. उन सबको एनालाइज करना, रिव्यू करना, उससे और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है. जैसे मेरा फार्मा पैथ में हमेशा अच्छा स्कोर आता था, मेरा फोरेंसिक में काफी कम स्कोर आता था, और सरप्राइजिंगली रेडियो में भी काफी कम स्कोर आता था. तो मुझे वहां से रियलाइज हो गया कि मे बी इन चीजों का मुझे थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है. तो मैंने उनकी सिर्फ सिलेक्टिव थ्योरी और मास्टर करी, और मैंने सुबह का टाइम स्लॉट बना दिया कि मेरा स्लॉट 1 में एग्जाम होता था, तो 9 to 12 मैंने सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग टाइम रखा कि पहले मैं 4 ब्लॉक्स बनाऊंगी. फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट ईयर, second block for second year subjects, third year for third and final year subjects, and final block for final year subjects. वैसे टाइमर लगा के जैसे नीट पीजी का ब्लॉक वाला एग्जाम आने वाला था, 9 to 12 सिर्फ ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती थी. रात के 10 से 12 मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस होती थी. I did this approximately for 20-25 days, and वहां से मेरा 165 to 177 का जंप आया था. एंड ओवरऑल कितने क्वेश्चंस किए होंगे आपने लास्ट तक आते आते? When I was an intern, I used to just struggle to even practice 50 to 100 questions daily. But after my internship got over, I used to practice around 200 to 300 questions daily. And after my exam got postponed the last time, I used to practice around 500 to 600 questions daily. On a daily basis? On a daily basis. Because I was less on reading theory, because I was pretty saturated by reading same stuff. So that is the point I'm telling to you guys. In case the exam gets stuck at any point, it is blessing in disguise for everyone who is preparing well or who is not preparing well. डॉक्टर मलिका देखो, बेसिकली क्या है, अभी जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, या जितने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है ना, उन सबका एक सबसे बड़ा आस्क है कि सर हम जीटी तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा स्टोर बहुत स्टेगनेंट है, मतलब दे आर, उनका जो स्कोर का पैरामीटर समवट अराउंड वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, राइट. सो आपके हिसाब से व्हाट वुड बी द आइडियल अप्रोच to review the GTs? Okay. So I think we get just one analysis that कि आपको लास्ट के 3-4 सब्जेक्ट्स जो वीक है वो दिखा देता है कि आपके ये सब्जेक्ट्स वीक है. सो पिक ऑन दो सब्जेक्ट्स, रियलाइज कि वो कहाँ पर वीक है, आपको वो आते नहीं है, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर आपको सब आता है बट आपने रिवाइज नहीं करे, या फिर आपने रिवाइज भी कर ली पर आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है.
तो जीटी रिव्यू में आपको सबसे पहले देखना है, अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल 110 करेक्ट आ रहा है तो वो 90 क्वेश्चंस को मुझे देखना है, क्या ये फैक्चुअल क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, आप अब अपने नोट्स में ऐड कर दो, आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी, उसको अपने नोट्स में ऐड कर दो। अगर आपको लगता है कि आप रिकॉल बेटर नहीं कर पा रहे, आपने पढ़ा हुआ है वो लेकिन मुझे एग्जाम में याद नहीं आ रहा, या मुझे एग्जाम में मैं स्टक हो गया उसको देख के, तो आप अपना जो रिविजन साइकिल है, तो जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे आपकी रिकॉल एबिलिटी बेटर होगी। सेकंड कि जब आप रिकॉल कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना कि आप पहले 1 to 19 सब्जेक्ट्स फिनिश करोगे फिर आप फर्स्ट सब्जेक्ट पे आओगे, यू हैव टू कैरी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर आपकी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स का आपका फर्स्ट स्लॉट है, तो जब आप अपने सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स का सेकंड स्लॉट पे आ रहे हो ऑन अ फ्री डे, जस्ट से कि मुझे फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में क्या लैकिंग था, क्या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, कहाँ मेरे एमसीक्यू प्रैक्टिस वीक थी, फ्री डे पे बस वो करो। अगर आपको लगता है आपको बायोकेमिस्ट्री याद है, बस इसको उसका कस्टम मॉड्यूल बना के रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है मैं एनाटॉमी में रिकॉल में अच्छा नहीं हूँ, मुझे नोट्स याद नहीं है, तो उस फ्री डे पे एनाटॉमी की बस नोट्स पढ़ लो, बट जस्ट गो थ्रू इट। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस वे कि मैं पहले 1 to 19 खत्म करूंगा फिर फर्स्ट पे आऊंगा, तो आपकी प्रोग्रेस इज वेरी फ्लैटेंड, कि ना तो आपको 19 याद होगा ना आपको एक टाइम पे फर्स्ट याद होगा, तो यू हैव टू कैरी ऑल 19 सब्जेक्ट्स टुगेदर। थर्ड इज टू फिगर आउट कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट का आपको पता है थ्योरी वीक है, या मैं इस तरीके के क्वेश्चंस गलत करता हूँ, टू कोट एन एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि मैं हार्ट ब्लॉक्स के बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन गलत कर रही हूँ कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या पैटर्न है ईसीजी का, तो गो टू द मेन नोट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, स्टडी फ्रॉम मेन वीडियोस, लेक्चर्स, नोट्स, कि ओके दिस टॉपिक आई फ्रीक्वेंटली डू रॉन्ग, नाउ आई हैव टू गो टू मेन नोट्स ऑफ दीस सब्जेक्ट्स, स्टडी की अच्छा ठीक है मुझे ये नहीं समझ आ रहा था, ये मैं गलत कर रहा था, ये इसका कंसेप्ट है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग उसी तरीके के क्वेश्चंस की अगर हार्ट ब्लॉक्स गलत हुए तो मैं अब हार्ट ब्लॉक्स प्रैक्टिस करके देखता हूँ। देखो अब अगर आपका फिर अब वो वाला पार्ट फिगर आउट हो जाता है, तो लास्ट होता है कि आपको ये सब पार्ट इज करें, दैट फैक्चुअल ऐड कर लिया, रिकॉल भी मैंने बेटर कर लिया, रिविजन्स भी अच्छी चल रही है, मुझे थ्योरी भी याद है, पर एमसीक्यू का जो लैंग्वेज होती है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग टू डू, मैं उसमें फंस रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ी कम है। हो सकता है कि यू माइट बी प्रैक्टिसिंग 50 to 100 क्वेश्चंस डेली, बट स्टिल यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग बिकॉज दीज आर वेरी अप्रोच बेस्ड, एंड वो किसी तरीके से नहीं आ सकते, वो बस और ज्यादा एमसीक्यूज करके आपको आएंगे। तो अभी एमसीक्यू सॉल्विंग टाइम ज्यादा बढ़ाओ, एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल ज्यादा बढ़ाओ। why am I stressing so much on this point is, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो आपको मे बी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं इतना गेन होता, आपको वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एबिलिटी आ जाती है, या तुक्का लगाना आ जाता है कि हाँ मैं इनमें से कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच पाऊँ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू एक्वायर। ओके, फिर जो यस प्लीज बताइए। फिर also while reviewing your GT, just use those features की guess right किया and then keep a track कि मैंने कौन से guess right करे हैं और मेरी guessing ability अच्छी है क्या, and you will realize that if your MCQ solving time is a lot, then your guessing ability will also improve. ओके डॉक्टर मलिका, एक चीज बताओ, अब जैसे जो पर्सन लेट्स से 130 स्कोर कर रहा है और लेट्स से एक स्टूडेंट है 140 स्कोर कर रहा है, राइट? आपने बताया, आपने एम्फसाइज भी किया कि एमसीक्यूज इज वन ऑफ द की कंसर्न, जो स्कोर कर भी रहा है लेट्स से ये 140 या 140 क्या डिफरेंस होता है कि 130 और 140 वाले में इन टर्म्स ऑफ नॉलेज? I think नहीं, knowledge में भी there is not a lot of difference. Differences की आप first of all your exam giving mindset कि आप कितने calmly, अगर आप obviously anxious होके दे रहे हो तो 5-6 क्वेश्चन आप silly mistakes में करोगे। जो इम्पोर्टेंट होता है कि एक होता है एमसीक्यूज में भी दोनों ने अगर इक्वल भी सॉल्व करे तो उनकी अप्रोच क्या एमसीक्यू को लेके, कि बस ब्लाइंडली आप कुछ भी देख के करेक्ट कर दे रहे हो या फिर आप क्वेश्चंस में पढ़ के लॉस्ट हो जा रहे हो, तो वो सब नहीं करना है। हमेशा 3 गलत आंसर ढूंढो, मे बी 140 की पास ये स्किल होगी कि वो सही आंसर पे पहुंच सकता है, दो मे बी दोनों एलिमिनेट कर ले 2 ऑप्शंस, पर सही आंसर पे कौन पहुंच सकता है? जो 3 गलत ढूंढ रहा है ऑब्वियसली उसकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। सेकंड, ये नहीं करना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मैं बहुत लॉस्ट हो गई या बार बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उससे कंफ्यूजन ऐड होती है, आपको लगता है कि मे बी ये हिंट दिया है तो ये इस तरफ जा सकता है, जो कि एक गलत अप्रोच होती है। बस लास्ट लाइन पढ़ो, ऑप्शंस देखो पूछना क्या चाह रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ो और आ जाओ। अगर इमेज दे रखी है तो लास्ट लाइन इमेज, देन रीड द फुल क्वेश्चन, देन मार्क द राइट आंसर। ओके सो मूविंग अहेड टू अनदर क्वेश्चन। अब लेट्स से, क्योंकि देखो एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये हैं, राइट? मैं इसी के अंदर थोड़ा सा और डीप जाऊं तो मेरी जब स्टूडेंट से बात होती है ना, तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जीटीज को लेकर बहुत फोमो क्रिएट करते हैं, एंड उनकी क्या अप्रोच रहती है कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वंस वी विल फिनिश द सिलेबस देन विल गो विद द जीटीज,
मतलब एक बार पूरे ऑल 19 सब्जेक्ट्स कर लेंगे तब करेंगे. डू यू थिंक इट इज द गुड अप्रोच टू गो फॉर? Obviously not. Obviously not. As I said that I started giving GTs in my final year. तब तो कहाँ से मेरे 19 सब्जेक्ट्स पूरे हुए होंगे, कितना तो फाइनल ईयर का सिलेबस बचा था. बट मैंने एक अब्बास सर की वीडियो देखी थी, तो सर ने कहा था कि जीटीज को तुम ऐसे सोचो कि वो तुम्हारा वो फ्रेंड है कि तुम में जो मिस्टेक्स है या वो हाईलाइट कर दे रहा है. तो एक वो फ्रेंड जो एक सच्चा फ्रेंड है कि जो आप में प्रॉब्लम है, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो या जो आप गलत कर रहे हो, वो आपको बता दे रहा है. तो सी जीटीज एंड दैट टू एज दैट टू कि wherever you are going wrong in your preparation, they are telling you, they are analyzing things for you कि okay. And also if you just start giving GTs now, maybe you'll get 80 or 90 questions correct. अगर आप एक बार 19 subjects खत्म करके दोबारा GT दोगे, you'll obviously have some progress in the form of maybe you'll get 110 or 120 questions correct. So that journey is very satisfying to see कि मैंने एक रिविजन में या एक साइकिल ऑफ रीडिंग में ये कर लिया है. So don't go with that approach that I will first finish 19 subjects and then I will give GT. If you go with that approach ना, तो आपको लगेगा एक बार अभी तो मैंने बस पढ़ा है ना, अब मैं रिवाइज करता हूँ पहले 19 subjects, फिर मैं GT दूंगा. तो don't do this. As sir says, the best time to give GT is yesterday. So keep these things in mind. Okay, so moving on to another set of students. अब ये तो सारे वो स्टूडेंट्स हो गए जो शुरू से अपनी प्रिपरेशन रख रहे थे. अब लेट्स से जो सेगमेंट बचा है हमारे पास कि यार इंटर्नशिप खत्म होगी उसके बाद करेंगे, और अगर लेट्स से नीट पीजी पोस्टपोन होता है, राइट, उनके लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, It राइट. is. समवट अराउंड की जो अभी स्टूडेंट स्टार्ट करेगा अभी सही, सो ही और शी विल बी फॉलोइंग अराउंड 80 to 100 के स्कोर कैटेगरी में. उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है, या इज देयर एनी शॉर्टकट्स कि जिससे वो अपना स्कोर 130 140 तक ले जा सके? ठीक है, सैडली देयर आर ऑब्वियसली नो शॉर्टकट्स टू इंक्रीज योर स्कोर. तुमको वही करना है जो सब लोगों को करना है, बस थोड़ा स्मार्टली करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. डोंट जज योरसेल्फ टू मच कि औरों को ज्यादा आता है या मैंने तो अभी पढ़ना शुरू करा है. I think I can also give you plenty of examples and you yourself might be having some seniors जिन्होंने बहुत ही last moment पे पढ़ना शुरू करा, and most of them have amazing ranks. They have been in their dream colleges and in their dream branches, their branch of choice. तो ऐसा ही सब नहीं करना है. अपने किसी सीनियर को मोटिवेशन के फॉर्म में पकड़ लो कि इन्होंने भी तो कर लिया ना, तो हम भी कर लेंगे. एंड स्मार्टली स्टडी करना है. अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आई थिंक यू हैव 3 months टू नीट एंड एटलीस्ट 8 months to November आएगा. So I think that's a good time to just study once and you will have almost completed your one cycle of revision till then. तो कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टॉपिक्स पकड़ो. जब आप ये क्वेश्चंस करने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि कुछ सेक्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो पहले अपने नोट्स से उनको मास्टर कर लो, ठीक है. उसके बाद फिर आपको थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ चलाना है. अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो आपको मेडिसिन के क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. यू डोंट हैव टू कीप दैट अप्रोच दैट आई विल फर्स्ट finish reading and in my second reading I will start solving MCQs. Don't do that. Just do it simultaneously. थर्ड इज कि आपको अब अपने जो नोट्स पढ़ रहे हो उनमें से कंसाइज भी साथ साथ करते चलना है, ठीक है. आपको वट एवर यू हैव टू रीड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आई शुड बी एबल टू रिवाइज इट इन द लास्ट 10 days. मेरे पास एक कंसाइज मटेरियल होना चाहिए. जो भी फिर आप नोट्स पढ़ रहे हो उसमें से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा बार क्या पूछा जा रहा है, उसको हाईलाइट कर लो नोट्स में कि अगर मुझे लास्ट 10 days पढ़ने को मिलेगा तो मैं सिर्फ इतना पढ़ के आई विल जस्ट मास्टर दीज टॉपिक्स. एंड लास्ट पॉइंट इज कि जैसे आपने पूछा कि जीटीज आपको भी रेगुलरली देने हैं और जीटीज आपको भी टाइमली देने हैं. अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट भी प्रिपेयर्ड है फिर भी आपको जीटी देना है. आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं. जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा, अगर मैंने मेडिसिन खत्म करी है तो मुझे मेडिसिन का टेस्ट अटेम्प्ट करना है. मुझे एटलीस्ट पता चले कि मैंने जिस अप्रोच से पढ़ाई करी है उस अप्रोच मेरी ठीक है या नहीं है. अगर मेरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में ठीक स्कोर आ रहा है, मे बी 50 में से 30-35 करेक्ट आ रहा है, मतलब मैंने ठीक अप्रोच से पढ़ाई करी है. अगर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 20-25 करेक्ट आ रहा है, मतलब आई एम समवट लैकिंग इन माय प्रिपरेशन, तो उसको सब्जेक्ट को वही असेस करना टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. टेस्ट देने उन सब टेस्ट को रिव्यू करना है आपको. दैट्स इट. हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. दिस विल टेक यू अहेड ऑफ अदर्स. ओके, सो जैसे आप जीटी रिव्यू की बात कर रहे हो, लेट्स से अगर मैं आज जीटी दे रहा हूँ तो मुझे इसको कब रिव्यू करना चाहिए? लाइक शुड आई टेक अ ब्रेक ऑफ लेट्स से 3 to 4 days और 1 week? No, not at all. I think live GT की विंडो रहती है अराउंड 7 to 10 days. ओके. आई थिंक 3-4, आई थिंक 5-6 दिन तो रहता है ये लाइव जीटी. तो ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑन योर लास्ट डे. कि अगर मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी, अगर आज 2 बजे एक्सपायर होगा तो मैं आज 10 बजे ही शुरू करूँ.
कि 10 to 1 आई विल गिव जीटी, 1 to 2 और 1 to 30 विल बी रिलैक्सेशन, और जैसे ही फिर उसका रिजल्ट आता है साथ साथ ही उसको रिव्यू कर लो। मैंने सुबह ही मार्क किया है तो मुझे पता होगा मैं क्या सोच रही थी एग्जैक्ट इस टाइप पे, मैंने ये ऑप्शन क्यों नहीं मार्क किया, जो मेरा गलत हुआ मैंने वो क्यों गलत किया, मैं क्या सोच रही थी, वो थॉट प्रोसेस मेरे साथ रहेगा अगर मैं उसको जल्दी रिव्यू कर लूंगी तो। और सेम डे रिव्यू करो, और रिव्यू कैसे करना है उसको, सबसे पहले वो क्वेश्चंस रिव्यू करो जो इनकरेक्ट हुए हैं, उसमें भी डाइव डीप डाउन कि क्यों गलत हुआ है। मैं थ्योरी नहीं आती थी, एमसीक्यू नहीं आता था, फैक्चुअल था, रिकॉल एरर था। जो भी मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर दो। किन नोट्स में ऐड करना, जो आप लास्ट 10 डेज में पढ़ने वाले हो। सोचो अगर आपने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, आपने गलत किया हुआ, आपने उसको नोट डाउन किया हुआ है और आप उसको पढ़ के ही नहीं जा रहे फाइनल एग्जाम में, तो वो तो आपको पूरा वेस्ट हो गया ना, पूरा इंटायर थॉट प्रोसेस इज गॉन कि आपने इतनी मेहनत भी करी और आप फिर भी उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। तो उसकी एक अलग नोटबुक मत बनाओ, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है कभी भी। उसको किसी ऐसे सोर्स में ऐड कर दो जो आप आखिरी के दिनों में पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर देखो जो आपने गेस्ट राइट करे थे, क्योंकि वो आपने गेस्ट करा, आपका राइट हुआ है, गलत भी हो सकता था, तो उसको भी इसी अप्रोच से फिगर आउट करो कि मैं इसमें क्यों कंफ्यूज हो गई थी दो ऑप्शंस के बीच में। सेम थ्योरी वीक थी, एमसीक्यूज वीक थे, रिकॉल फैक्चुअल, उनमें से फिगर आउट करो क्या है। लास्ट में जो आपकी करेक्ट है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मे बी 110 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है, बस आपको देखना है कि ओके दिस टॉपिक इज डन, दिस टॉपिक इज डन, एंड जस्ट मूव ऑन विद दैट सब्जेक्ट। जो भी आपको जीटी का स्कोर आया उससे बहुत डिसहार्टन नहीं होगा, उसको ऐसे लेना कि अभी हो गई ना मिस्टेक, एग्जाम में तो नहीं हो गई, अब एग्जाम में आई कैन प्रिवेंट दिस वन मिस्टेक एटलीस्ट, ये मेरा बैंक क्वेश्चन हो गया जो मुझे आगे नहीं गलत होगा मेरा, तो बहुत डिसहार्टन नहीं होना जीटी स्कोर से। ओके, तो आपके हिसाब से विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स जब हमने जीटी दिया, वी शुड रिव्यू इट। वी शुड रिव्यू इट। सो डॉक्टर मलिका, देखो अब जैसे होता क्या है कि कंसिडरिंग हमने रिव्यू की बात करी, हमने जीटीस के ऊपर सारा डिस्कशन किया, अब ड्यूरिंग द टाइम स्पैन की जो लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, अब देखो ऐसा तो कभी नहीं होता होगा कि हमने आज जीटी दिया, हमारे 130 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, हमने नेक्स्ट जीटी दिया वो 135 140 पे गया, राइट। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा जीटीस का स्कोर लो जा रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बहुत नेगेटिविटी भी आती है, एंड समवट अराउंड की अगर नेगेटिविटी है तो उस फीलिंग को ओवरकम करना इट्स अगेन अ चैलेंज। तो हाउ टू ओवरकम दैट फीलिंग? ओके, सो ऑब्वियसली एज यू सेड, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कांस्टेंट इंक्रीज ही आ रहा है। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल हैव सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ 5-10 क्वेश्चंस इन योर जीटी स्कोर्स। तो दैट इज अ वेरी नॉर्मल कर्व कि हर किसी का किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा, आपका मे बी 130 पे आ जाए, किसी का मे बी 150 पे आएगा। सो जस्ट टेक इट विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच कि लेट मी सी लास्ट टाइम मैंने ऐसा क्या करा था, क्या सही करा था कि मेरा 130 आ रहा था, आपकी बार मैंने ऐसा क्या करा कि मेरा 10 क्वेश्चंस ड्रॉप हो गया, क्या मेरी प्रैक्टिस इनफ नहीं थी या फिर क्या मैं कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं था। एंड सेकेंडली आई बीन इन दिस सिचुएशन कि मेरा स्कोर भी ऐसे, आई वाज सो मच इनकी, मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया इस जीटी में, और फिर मुझे वो इतना याद रहता था, इतना ट्रिगर करता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन गलत कर देती थी। मेरे में उस टाइम पे क्या गलत था, माय अप्रोच, माय माइंडसेट वाज रॉन्ग कि मैं बहुत ज्यादा उस जीटी स्कोर को कैरी कर देती थी अपने साथ कि ठीक है मेरा नहीं होगा, मेरा इतना ही स्कोर आएगा, मेरा स्कोर यहाँ से बढ़ने वाला नहीं है। और जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ मेरी पूरी अप्रोच ऐसे बदल गई, मैं सोचती थी कोई बात नहीं, टेस्ट दे देते हैं, गलत हो जाएगा तो रिव्यू कर लेंगे इसको। तो दिस कॉन्फिडेंस, दिस माइंडसेट यू हैव टू कैरी टू योर एग्जाम हॉल एज वेल कि क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही देखना है, उसको एक लर्निंग टूल की तरह ही देखना है। गलत हो रहा है, लर्न फ्रॉम इट, सही हो रहा है, वेरी गुड, एंड उसको वहीं पे भूल जाना है। You don't have to carry these feelings along. And I know it is easier said than done, but this is how it is. ओके, फेयर इनफ। सो अब लेट्स से ये तो हमने 19 बैच वालों के लिए डिस्कशन किया, अब लेट्स से जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया है, 18 बैच 17 बैच स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ऑफ कोर्स दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस फ्रॉम द लास्ट 1 year, राइट? व्हाट वुड बी द एडवाइस फॉर ऑल दोस स्टूडेंट्स अगर वो अपना जीटी स्कोर को इंप्रूव करना चाह रहे हैं? Okay, so I think it is very difficult to stay consistent over 1 year and study, and it will be more disheartening for those guys to actually, if the postponement news is true, it will be disheartening to those guys more क्योंकि उनके लिए already इतना ज़्यादा patience, they have tested their patience a lot. तो उनको भी सेम अप्रोच से प्रिपेयर करना है कि इन सारे रूमर से तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूर रहना है, ठीक है। और दूसरा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर आपने 1 साल के लिए रख लिया है तो 3-4 महीने और रख लो, मतलब अच्छा रिजल्ट ही आएगा आपका उससे।
डेली पढ़ना है आपको। बहुत सारा इनके लिए आई थिंक जो 18 बैच के या 17 बैच के लिए उनके लिए बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा कि मन नहीं कर रहा पढ़ने को, या फटीग आ गया, या थक गए, या जीटी स्कोर स्टैग्नेंट हो गया, तो मोटिवेशन चली गई। जस्ट मेक श्योर कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द बैड डेज दैट यू आर हैविंग, आप कुछ ना कुछ हर रोज पढ़ रहे हो। अगर आपका एकदम मन नहीं पढ़ रहा कर रहा पढ़ने का, आप कोई वीडियो देख लो। अगर आपको लग रहा है आपसे वो भी नहीं हो रहा, बस एक 25 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल करके उसको एनालाइज कर लो। बट यू हैव टू कीप गोइंग ऑन डेली। ऑब्वियसली यू हैव प्रिपेयर्ड सो हार्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड सो वेल, आपका एक एडवांटेज रहेगा दूसरे से। यू जस्ट डोंट हैव टू बी वेरी डिसहार्टेंड बाय एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। Okay. So moving on to the second last question. देखो अब जैसे नीट पीजी की हम प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं 160 165, देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक वो हर कोई करता है कि 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स. इज इट अ गुड अप्रोच in I paper? think it depends on your level of preparation. If you are very, very well prepared, if you have read every subject well, if your practice is very good, then you can maybe attempt 198 to 200 questions correct in NEET, not in INI. INI में you have that margin of leaving around 5 to 6 questions. कि अगर आप 194, 195 भी attempt कर रहे हो, that's a pretty good attempt. If you are just starting right now on giving GTs, so attempt around 185 to 190 maybe. कि 10 question का आपका margin रहता है. Don't attempt too low. ऐसे नहीं करना that you're just attempting 160 or 170 and you are still expecting a good rank. That is not a very good approach to follow. If you are somewhere midway कि आपके 130, 140 आ रहे हैं, then you can obviously attempt around 195 to 196 questions. Because अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है तो आपको अराउंड 4 मार्क्स अलॉट होते हैं उसके। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है नीट में, वो बस -0.25 पे लेके जा रहा है, तो आपके पास कितने सारे क्वेश्चन का गेस है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके एक भी सही कर रहे हो गेसिंग पावर में, तो वो कंपेंसेट हो जा रहा है। आप 3 क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन राइट कर रहे हो, वो आपका एडवांटेज में जा रहा है ऑफ 0.25। तो आपको अटेम्प्ट हाई रखना है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रियलाइज दैट व्हाइल इंप्रूविंग आवर जीटी स्कोर्स वी हैव टू आल्सो अटेम्प्ट हाई। 180 अटेम्प्ट करोगे, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो जिसमें से 5 भी ठीक हो जाते हैं, तो आपका स्कोर ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाता है। तो आई थिंक फॉर INI अटेम्प्ट अराउंड 195, फॉर नीट अटेम्प्ट अराउंड 198 to 200 में भी। और ऐसा नहीं होता कि आपको 200 क्वेश्चन ही आ रहे होंगे, आते आपको हार्डली 150 है, मैक्सिमम 150 आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे हो तो 160 आ रहे होंगे। बाकी की जो 30-40 क्वेश्चन का गेम है वो आपका गेसिंग गेम है, और वो आपका जीटीज देते देते इंप्रूव हो जाएगा। जस्ट वो जो गेस ट्रैकर होता है उससे देखो कि आप अच्छे गेसर हो, बुरे गेसर हो, और विद एवरी पासिंग जीटीज आपकी गेसिंग पावर इंप्रूव हो रही है क्या। बाकी 30-40 क्वेश्चन का गेस गेम ही है कि आप उन क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हो। अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो कभी भी, उस क्वेश्चन को पक्का अटेम्प्ट करो। अगर 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक एलिमिनेट हो रहा है, तब भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। व्हाट इफ इट इज राइट, आपके एडवांटेज में जाएगा वो। अगर लगता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑप्शंस का, कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, मैंने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, देन यू कैन, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया कि मुझे अब स्किप करना है क्वेश्चन, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है क्या पूछ रहा है। ओके, तो आप कोई ऐसे हैक्स भी यूज करते थे फॉर गेसिंग दीस क्वेश्चंस? हाँ, एक तो वो ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही आ जाता है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस आ जाते हैं ऑप्शंस में कि या तो इसका मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस जब आ जाते हैं तो आंसर उन दोनों में से कोई बनेगा, येस और नो वाला। बाकी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो येस और नो में से इंस्टिंक्ट के साथ में पहुंच जाती थी कि कौन सा लग रहा है, कौन से की इंस्टिंक्ट आ रही है। एंड आई थिंक आउट ऑफ 10 अराउंड 6 और 7 टाइम्स इंस्टिंक्ट करेक्ट ही होती है आपकी। 3-4 बार गलत हो सकती है कि 10 क्वेश्चन में से 3-4 बार आप गलत कर रहे हो। और एक जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपको बस लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो वो भी यूज कर लेती थी मैं। So, Dr. Malika, moving on to the last question, मतलब what would be the final advice for all the NEET aspirants out there जो अपना prepare कर रहे हैं और who are preparing for this particular NEET? सो मे वाला INI देना है 3-4 रीजंस की वजह से देना है कि एक वो डेडलाइन हो जाएगी आपके लिए कि यहाँ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एटलीस्ट वंस, या फिर अगर आपका एक बार सिलेबस हो चुका है तो एक डेडलाइन हो जाएगी कि यहाँ तक मेरी एक रिविजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। और किस लिए देना है, इसको ऐसे नहीं सोचना महंगा जीटी है, ज्यादा पैसे लग जाएंगे, या मेरा INI में होगा नहीं, उन सब थॉट्स को असाइड रख के इसको ऐसा देना है कि दिस विल बी द क्लोजेस्ट स्टिमुलेशन टू द नीट पीरियड दैट यू विल बी हैविंग। एन एग्जाम ऑब्वियसली टीचर्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स दैट कैन बी। तीसरा कि अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है या बहुत अच्छी नहीं भी चल रही है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उस पर सारे टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है।
टेस्ट आपको बंद करने हैं अराउंड 15 to 20 days बिफोर योर नीट पीजी कि नाउ यू विल नॉट बी अटेम्प्टिंग एनी जीटीज बिकॉज तब आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो दैट इज अ ट्रिगर फॉर यू. डोंट अटेम्प्ट जीटीज इन द लास्ट 15 to 20 days, बट बिफोर दिस अटेम्प्ट एवरी टेस्ट कि जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लाइव हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज है, मिनी टेस्ट है या फिर जीटी है, attempt those tests, review them well. And last is to keep or take a leap of faith that you will be soon on the other side, and it will be a great feeling and a great space to be in. All the best to everyone. I hope and wish and pray that many of you get ranked even better than you. Well, thank you so much, Dr. Malika. It was pleasure to have you. Thank And you for having me. yeah, and thank you so much for sharing your valuable time with us. It really means a lot.